Before taking up the topic of this section, divorce by mutual consent and condonation of a statutory period between first and second motion under Hindu Marriage Act 1955. I would like to let you know that family court rules have already been framed. Are you aware? And it has been made applicable. Family court rules, Bihar Family Court Rules 2011. Are you having these rules? Are you not aware about it? क्या आप लोग को फैमिली कोर्ट रूल्स मिला है? आप लोग के पास है? बिहार फैमिली कोर्ट रूल्स 2011 है औरंगाबाद में है। हाँ है, ठीक है। तो आप लोग अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसलिए पॉइंट आउट किए कि एक केस में सेक्शन 27 का पिटीशन कर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो बहुत शॉर्ट रूल्स है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ये 25 मार्च 2011 से एप्लीकेबल है। और आपके काम की बात यह है कि इसमें जो प्रोसीज्योर जो है वो सिविल कोर्ट रूल्स में जो प्रेस्क्राइब है, रूल 212 से रूल 214 सिविल कोर्ट रूल्स, वो अप्लाई करेगा। और जैसा कि हमने कहा था 125 का जो प्रोसीडिंग होगा उसका प्रोसीज्योर चैप्टर 10 जो सीआरपीसी में है 125 से लेकर 128 तक वो प्रोविजन अप्लाई करेगा। लेकिन समन्स एंड नोटिस जो 125 का भी जाएगा उसका जो प्रोसीजर है ऑर्डर 5 सीपीसी में वो अप्लाई करेगा। तो इतना ही रेलिवेंट है। दूसरा रेलिवेंट क्या है कि एमिकस क्यूरे का प्रोविजन हो गया है। आप किसी ऐसे टिपिकल सिचुएशन में एमिकस क्यूरे का सहायता ले सकते हैं, आप अपॉइंट कर सकते हैं। और दूसरा मेडिकल एक्सपर्ट का भी सर्विसेज आप ले सकते हैं। और तीसरा काउंसलर की भी सर्विसेज ले सकते हैं और काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं। और काउंसलर का क्या ड्यूटी एंड फंक्शन होगा इसमें डिफाइंड है। इसलिए ये जब एज ए फैमिली जज आप फंक्शन करेंगे तो बिहार फैमिली कोर्ट रूल्स 2011 को अपने नोटिस में रखेंगे और इसको कंसीडर करेंगे, जहाँ पर जरूरत हो इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा ये कहना था कि डाइवोर्स हो या डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो या मेंटेनेंस हो, ये सब मैरिज रिलेटेड है। तो मैरिज रिलेटेड है मतलब ये मैट्रिमोनियल्स केसेज या सूट्स या प्रोसीडिंग कहलाता है। तो पार्टीज के पर्सनल लॉ को कंप्लीटली एब्रोगेट नहीं किया गया है, स्पेशल प्रोसीजर बढ़ाया गया है। इसलिए कौन कौन सा लॉ अप्लीकेबल है, व्हाट आर द लॉ ऑफ द लैंड which are relevant and applicable in the context of different parties professing different religion। तो कम से एक ओवरऑल व्यू आप लोग को जानना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर द लॉज ऑन दिस पॉइंट्स। सो आई विल गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज लॉज so that you may suitably apply the particular law wherever situation will arise। I am not aware in the entire state of Bihar the family court has been functioning, and in any district you may have parties professing Christianity, professing Islam, there may be a Parsi, there may be a case relating to Foreign Marriage Act and a Special Marriage Act। So whatever may be the situation, because you are required to deal with all the situations, not only this adoption, maintenance, divorce, guardianship, custody of child, dispute about properties. Wide jurisdiction has been conferred upon the family court, so it will be very proper and important to know how are those laws which are relevant in the context of any dispute arising out of matrimonial relation and subjected for adjudication in a special court designated as family court। तो पहला फर्स्ट ग्रेड में, इन फर्स्ट ग्रेड आई हैव डिवाइडेड इनटू सम ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड इज
secular laws. What are secular laws? Means it is not attributable to a particular community or personal law. सेकुलर लॉ में पहला आपका है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. यू मे टेक नोट ऑफ इट. सेकुलर लॉज रिगार्डिंग मैरिज इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. सेकेंड इज फॉरेन मैरिज एक्ट 1969. And a few provision relating to marriage is also incorporated in Indian Succession Act 1925. A few sections. So these are secular laws. Then comes the category of Hindu laws. Hindu laws, we are all aware that old Shastric Hindu law is there. There are provisions regarding marriage, adoption and maintenance in the old Hindu law, but there was no provision for divorce in the old Hindu law. It was a statutory enactment by which some changes have been brought, which are called codified Hindu law. So these are Hindu Marriage Act 1955, Hindu Marriage Act 1955, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Then another act is a very old act, Anand Marriage Act 1909. 1909 का है आनंद मैरिज एक्ट. इट इज एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सिख कम्युनिटीज. Another act is Arya Marriage Validation Act 1937. Arya Marriage Validation Act 1937, which is applicable in the case of persons relating to Arya Samaj. Recording in progress. Then another act is Hindu Marriage Validation of Proceedings Act 1960. It provides for validation of marriages which were solemnized earlier. Then some part relating to the inheritance and properties right relating to marriages also dealt with in Hindu Succession Act 1956. And lastly, Hindu Marriage and Guardianship Act 1956. So these are 7 enactments relating to Hindu laws. So far as Christian laws are concerned, sometimes some provisions of those laws have been taken as a guideline or for principle's sake in awarding maintenance or interim maintenance or permanent alimony. One is Divorce Act of 1869. Divorce Act of 1869. आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रहा है. अभी तुरंत बंद हुआ कि पहले से बंद? आवाज नहीं आ रहा है. सर हमें आ रही है आवाज. ऐसा बोल रहे हैं. हेलो. आवाज नहीं आ रहा है. अब आ रही है आ रही है आपको? सर. आवाज आ रही है. आ रही आवाज है. आ रही है. हाँ ठीक है. आवाज आ रही है. ठीक है. अब हम आप आवाज आ रही है सर. हाँ आवाज आ रही है. ठीक. ओके थैंक यू. आ रही. ओके हम एक आवाज एकदम नहीं आ रहा है. आपको नहीं आ रही है? अपने यहाँ देखिए. से गया सही प्रॉब्लम होगा. और लोग सुन रहे हैं. अगर अपना चेक कर लीजिए. अगर मान लीजिए किन्हीं को आवाज नहीं मिल रही है तो फिर कलीग से आप रेफरेंस ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम वो एक्ट, रेलेवेंट एक्ट का नाम जान लें और उसको नोट कर लें, कहाँ पर जरूरत पड़ेगा. तो अभी तक हमने सेकुलर लॉ में हम रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं. काइंडली डोंट टॉक इन बिटवीन. सब डिस्टर्बेंस आ रहा है. काइंडली म्यूट योर माइक. यू कैन ओनली enhance the sound. Kindly mute your mic. First part is a secular laws relating to
a Special Marriage Act 1954, Foreign Marriage Act 1969, and a small portion of Indian Succession Act 1925. Then Hindu laws relating to 7 acts. One is Hindu Marriage Act 1955, another is Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, Anand Marriage Act 1909, Arya Marriage Validation Act 1937, Hindu Marriage Validation of Proceedings Act 1960, then Indian Succession Act 1956, Hindu Minority and Guardianship Act 1956. So far as Christian law relating to person professing Christianity are Divorce Act 1869. Second is Divorce Act 1869. Second act is Indian Christianity Marriage Act 1872. Indian Christian Marriage Act 1872, and third is Marriages Validation Act 1892. These 3 laws relates to Christian parties and Christian marriages. Then comes Muslim law. So far as Muslim personal law is concerned, there are 4 concerning acts. First is Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. I am pointing out especially these acts because sometimes such questions were raised and some cases are pending in family courts. I had personal experience while deliberating in the physical class that some petitions are being filed by Mohammedan parties so far as dissolution of marriage and degree of divorce is concerned, either by presenting a petition in the court itself or with a plea that they have already divorced outside the court according to their personal law, but they want it confirmed and want a seal of the court for any extraneous purposes or ulterior motive, whatever may be. But such applications are there. Therefore, if such situation arises with regard to the personal law of any particular party who approached the family court, the court must be aware of those relevant provisions because those provisions are also applicable. As all of you are aware that this Family Court Act is a gender neutral as well as religion neutral act. Gender neutral act and religion neutral act. All the parties may approach this family court relating to their marital status and any ancillary disputes regarding their sons, daughters, adoptions, custody and their properties. Therefore, so far as Muslim application of Muslim laws are concerned, with regard to Muslim party, one act is Dissolution of Muslim Marriage Act. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Second act is a very important act because when you will deal with 125 CRPC, especially in case of Muslim parties, you must be aware that some development has been made and amendments have been brought, and all of you must be remembering Shahbanu case. Shahbanu case arose from a petition filed by Shahbanu against her husband, who was a senior advocate of that time in the Supreme Court, and he filed an application for maintenance. Her application was allowed up to Supreme Court in spite of the fact that the husband lawyer has taken a plea that under the Muslim personal law the husband is not liable to maintain the divorced wife. And all of you must be aware that this judgment of Parliament was later on nullified by the Act of Parliament. At that time, the Union government headed by Mr. Rajiv Gandhi, the then Prime Minister, for their appeasement policy of the Congress-led government, they brought a legislation which is known as Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act. Please take down the name of the act if you are not aware. Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. This act was especially enacted to nullify the judgment passed by the Honorable Supreme Court in case of Shahbanu. After enactment of this act, the jurisdiction of the magistrate under section 25, now the jurisdiction of family court acting under section 125, has been abrogated
so far as Muslim parties are concerned, but still jurisdiction is there as exception if the parties give consent. If a party approaches for maintenance professing Muslim religion and the other party objects the maintainability of that objection on the ground of the provision of this Protection of Rights Act, then the family court has no jurisdiction to entertain application under section 125. In that case, the forum is there. A special forum has been made in that act and provisions are made that will apply. But in exception, if the party gives consent and they offer under the jurisdiction of family court, then the family court may exercise jurisdiction under 125 CRPC. Therefore, it is important act and rules have been also framed under this act. Another act is Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937. This is the act by which the Muhammadan law is made applicable as personal law to all those persons professing Islam. By virtue of this act, because Islam is Sharia, law of Sharia, it is a Quranic law, and therefore by applying the provisions of 1937 Act, this act is made applicable to the personal law of Muslims, namely it is applicable in disputes arising out of marriages between the Muslim spouse. Then so far as Parsi community is concerned, there is another act, Parsi Marriage and Divorce Act 1936. They are to be governed by those acts. So these are important aspects. First is the rules which I have just pointed out, and second is the category of these acts. And the Family Court Act has got wide amplitude in its application, and the family court judge has got wide jurisdiction relating to matrimonial disputes as well as the dispute about maintenance arising out of section 125 CRPC. Now this topic, divorce by mutual consent. It is very easy to obtain divorce by mutual consent. Earlier this provision was not there. Later on the act was amended and this provision was inserted as section 13 capital B in the Parent Act. On the basis of the recommendations of the Law Commission, this provision, because the Indian High Courts as well as Supreme Court has taken note of some situations where their parties have already decided to disrupt their matrimonial tie, but on account of embargo and impediment which is there in the statute book, they were unable to obtain degree of divorce, in spite of the fact that they were willing to do so. And the High Court as well as Supreme Court cannot act beyond the statutory provision of law, so much so the Family Court will also not go against the statutory provision of law. So in order to overcome all those difficulties of those willing spouse who by consent, whatever may be the reason, on the basis of consent wanted to disrupt their matrimonial tie, having a legal sanctity of a court of law, means to obtain a degree for dissolution of marriage on the ground of divorce with mutual consent. Then certain parameters have been also incorporated, when certain conditions shall be applied and what will be the modality for applying those conditions so far as dissolution of marriage by consent degree. You are aware that any agreement or contract between parties, this is basic principle of Contract Act. Any contract or agreement between the parties which is either forbidden by law
or opposed to public policy is void and can't be enforced in a court of law. Similarly, prior to this, means prior to insertion of section 13B, in absence of any such a statutory provision, even if the parties agreed, means entered into a compromise to disrupt the matrimonial tie by obtaining a degree of divorce, that compromise was not maintained because there was no such provision. It was rather deemed to be contrary to the statutory provision of law, and therefore it was treated as unlawful. And if it was unlawful, the court has not accepted the compromise and did not permit the dissolution of marriage on that ground. Now the situation has been changed. Kindly turn to section 13B. It is a very important aspect, and the family court must pay due attention to these provisions while granting mutual degree on mutual consent. So I am reading section 13B. Kindly take out the book if available, or on net or mobile you can see the provision, and I would like to read line by line so as I may be in a position to explain you and you may appreciate what I beg to convey to you at this juncture. Subject to the provisions of this Act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the consent of the Marriage Laws Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. There are three conditions. There are three conditions for obtaining dissolution of marriage on the basis of consent decree of divorce. First is that the parties to the marriage have been residing separately since 1 or more years. Thereby 1 year embargo is there. Second is, for that 1 year they have not been able to live together. Means complete absence of cohabitation between the spouse. Third is, they have mutually agreed that marriage should be dissolved. Mutually agreed means it must be a valid consent. It must be a valid agreement. How it can be a valid agreement and valid consent? When it is free from any doubt, free from any vagueness, free from any undue influence, free from fraud, free from coercion, free from duress. If there are no suspicious circumstances which may invalidate the agreement, then it is the duty of the court, just like in other civil matters, the court is supposed to satisfy itself regarding validity of the compromise. Means it is a lawful compromise. It is not obtained by fraud or coercion, or it is not opposed to any provision of law. Therefore, these are the important aspects so far as consent degree or with mutual consent is concerned under section 13B of the Act. In this context,
in this context, Your Manipur. there are a few important case laws for your appreciation. Whatever I have just deliberated before you, you will find in one judgment of Punjab and Haryana High Court, wherein details all those facts point wise have been mentioned. If you want to note down the point, I will give the point. आवाज कुछ आ रही है, आप अपना ऑडियो बंद करें, डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जजमेंट में जो पॉइंट्स दिया गया है पॉइंट वाइज लिखें, जब आपका मोहम्मद गौतम गौस साहब, लगता है कि आपका कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस है क्या? पता नहीं, कभी नहीं आती। आपको आवाज नहीं आती, लेकिन आपके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस साउंड हमको पता चल रहा है। तो आप अपना ऑडियो म्यूट किए हुए हैं ना? आपका ऑडियो म्यूटेड है ना? हाँ, म्यूटेड है, तब ठीक है। हमारी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? हाँ, तो आप चाहिए तो पॉइंट्स हम डिटेल में कंसेंट डिग्री का हम नोट करा रहे हैं, आप नोट करिए, रेलेवेंट है, आपको मौका मिलेगा तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा। पहला कंडीशन होना चाहिए कि वैलिड मैरिज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, 1 साल से अलग रहना चाहिए। जिस दिन एप्लीकेशन दिया उसके 1 साल पहले तक दोनों अलग अलग रहे हों। तीसरा कंडीशन कि उस 1 साल में कभी भी एक दिन साथ नहीं रहे हों। चौथा कंडीशन, दोनों में सहमति बन गई कि हम लोग आपसी सहमति से डाइवोर्स लेंगे, और ये सहमति जिस दिन आवेदन दे रहे हैं उस दिन तक होना चाहिए। पहले कभी भी बनी हो या लगातार बनी रहे ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन पहले सोचेगा। पहले थ्योरी होता है तब प्रैक्टिकल होता है, तो पहले दिमाग में आएगा एक पार्टी को, फिर दूसरा पार्टी से डिस्कस करेगा, कन्वे करेगा, जो भी उसका सिचुएशन हो वो मटेरियल नहीं है, लेकिन दोनों का इंटरचेंज ऑफ मेंटल कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे किसी भी डिवाइस से हो। तो मेंटल कंडीशंस का कम्युनिकेशन होगा और दोनों इस बात पर एग्री करेंगे कि हमको डाइवोर्स लेना है, तो उसको रिटर्न में लाएंगे। हो सकता है 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से, 1 महीना पहले से बात चल रही हो, कभी बात चली हो, ये मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये है कि जिस दिन पिटीशन प्रेजेंट किया उस दिन तक म्यूचुअल कंसेंट है। तब सवाल उठता है, और बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, तब उसमें पिटिशनर दोनों को होना चाहिए। तो आंसर है एस। अगर म्यूचुअल कंसेंट का है तो दोनों पार्टी का पिटीशन वेरीफाइड, सपोर्टेड विथ एफिडेविट होना चाहिए, उसमें कोई अपोजिट पार्टी नहीं होगा और नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन केस अगर बहुत जल्दीबाजी है, कभी कभी देखा गया है कि 2 में से एक पार्टी पिटीशन फाइल कर देते हैं और अदर साइड को अपोजिट पार्टी बना देते हैं, तो उसमें भी होता है कि जब म्यूचुअल कंसेंट है तो क्यों अपोजिट पार्टी बनाया? अपोजिट पार्टी हो सकता है, वहां तक भी कोई बैरियर नहीं है। अपोजिट पार्टी हो सकता है कि जिस समय पिटीशन प्रेजेंट हो रहा हो अपोजिट पार्टी अवेलेबल नहीं हो। बहुत सा मीडिया है जिसके थ्रू कम्युनिकेशंस हो रहा है आजकल, तो वो अपॉर्चुनिटी उसको जाएगा, समझ जाएगा, वो आ करके कहेगा कि हाँ
हम ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, हम भी चाहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से हो, वो राइटिंग में लिख के देगा कोर्ट में, तो म्यूचुअल कंसेंट से डिजॉल्व कर दिया जाएगा, डिग्री बन जाएगी। इसलिए ये कंडीशन है कि जिस दिन तक वो प्रेजेंट हुआ उस दिन तक उसका म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का क्या कहता है? सेक्शन 23 के कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं? तो सेक्शन 23 जो कहता है उसमें जब डिग्री देगा तो कोर्ट डिग्री इन प्रोसीडिंग क्या क्या होगा, तो वो सेक्शन 23 को कंसीडर करते हुए ही आपको देखना होगा। सेक्शन 23 का कंसीडरेशन करना होगा बिफोर एक्सेप्टिंग इट, जो कि कहता है डिग्री कब कैसे होगा उसके बारे में डिटेल दिया हुआ सेक्शन 23 में। तो सेक्शन 13B के पिटीशन को कंसीडर करने के लिए सेक्शन 23 भी देखना आवश्यक है। अब ये ग्राउंड सब हो गया, पांचों कंडीशंस हो गया, तब कंसेंट को फर्दर वो वॉलंटरली है, बोनाफाइड है, जेन्युइन है कि नहीं है, इसको भी कंसीडर करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल ऑब्लिगेशन कोर्ट का है। वो आपके सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है कि आप कैसे सेटिस्फाई होते हैं। जैसे सिविल सूट में दोनों पार्टीज मिल करके और दस्तखत करके कॉम्प्रोमाइज पिटीशन डाल देता था, पहले डिग्री बन जाती थी। यहाँ तक लॉ कहता है कि या तो पार्टी दस्तखत करेगी या प्लीडर। बहुत से पुराने केसेज में बिफोर इंडिपेंडेंस हमने देखा है कि पार्टीज का दस्तखत कॉम्प्रोमाइज पर नहीं है, वकीलों का ही दस्तखत है और कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट हो गया, डिग्री बन गई, किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो जैसे जैसे लूप होल्स पता चला और उसका मिसयूज होते गया, वैसे वैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजन में भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जहां अमेंडमेंट नहीं आया वहां कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया गया और बहुत सारा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ, जिसके आधार पर जो हमारा जो जुडिशियल प्रेसिडेंस कायम है, उस प्रेसिडेंस के आधार पर कोर्ट इतना विजिलेंट है कि उसको कंसीडर करते हुए आगे मैटर को डिस्पोज ऑफ करता है। तो अभी उसमें गवाही हो रही है। लोअर कोर्ट में जितना भी आता है कॉम्प्रोमाइज, तो दोनों पार्टी की गवाही होती है ऑन ओथ, तब एक्सेप्ट किया जाता है। ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि वेदर इट इज लॉफुल और नॉट। और लॉफुल डिसाइड करने के लिए देखना पड़ेगा कि कोई फ्रॉड है कि नहीं, कोर्सन है कि नहीं, अनडू इन्फ्लुएंस है कि नहीं, कोई ड्यूरेस है कि नहीं, आउट ऑफ फियर तो नहीं कर रहा है, या फ्रॉडेंटली को चीट करके तो नहीं करा रहा है स्पाउस को। ये सब देखना पड़ेगा आपको। वो देखने के लिए आपके पास कोई एक स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, एक स्पेसिफाइड पैरामीटर्स नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही पैरामीटर्स आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। या तो वो सिविल सूट में कोई कॉम्प्रोमाइज हो, या ये डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी है, ये भी सिविल प्रोसीडिंग है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो, बोथ शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट सो फार एज द प्रोविजंस ऑफ कंसेंट डिग्री इज कंसर्न। अब ये समझिए, ये जो जितना ग्राउंड्स हमने बताया है ये बहुत अच्छी तरह से डील हुआ है। ये आप जजमेंट लिख लीजिए। कृष्णा खेतरपाल, पार्टी का नाम है कृष्ण खेतरपाल, कृष्णा खेतरपाल वर्सेस सतीश लाल, कृष्णा खेतरपाल वर्सेस सतीश लाल, AIR 1987 पंजाब एंड हरियाणा 191। नोट कर लिए?
तो कौन बात कर लो। अब एक सिचुएशन यहाँ पर और इमर्ज करता है। वो इमर्ज क्या करता है कि अगर जनरल पिटीशन पड़ा हुआ है सेक्शन 13 में, जो भी ग्राउंड डाइवोर्स का है, उसमें अगर डाइवोर्स केस चल रहा है, अब बाद में पार्टी लेटर स्टेज में किसी भी समय आके कॉम्प्रोमाइज करता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर वो उसमें कॉम्प्रोमाइज डिग्री नहीं हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब ये कॉन्सेंट डिग्री लेना होगा तो उसके लिए सेपरेटली 13B में फाइल करना पड़ेगा पिटीशन, और 13B के कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, रेड विथ सेक्शन 24। आगे सेक्शन 24 में कुछ सिचुएशन दिया हुआ है जिसको भी ऑब्जर्व करना होगा। तो दोनों दो पैरामीटर्स हो गया। सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स है क्रूएल्टी और अदर ग्राउंड्स है, डिजर्शन है, इंसैनिटी है, इनचस्टिटी है, जो भी ग्राउंड्स है 17 में, वो सब ग्राउंड्स सेक्शन 13 में के अंदर अगर केस है तो वो कॉम्प्रोमाइज से डिस्पोजल नहीं हो सकता है, और कंसेंट डिग्री म्यूचुअल कंसेंट वाला उसमें नहीं अप्लाई करेगा। अगर ऐसा होगा तो उसको विड्रॉ करके पार्टी को फ्रेश पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इस पर एक जजमेंट है, आप लिखिए, डिवीजन बेंच जजमेंट है, मुनेस, MUNESH, मुनेस वर्सेस अनास बेअम्मा, ANAS, अनास बेअम्मा, VBAMMA, अनास बेअम्मा, AIR 2001, कर्नाटक 355, डिवीजन बेंच जजमेंट। सर ईयर क्या होगा? AIR AIR 2001, कर्नाटका, यस सर, पेज 355, डिवीजन बेंच जजमेंट। ये दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट, इस पर कभी कभी लोग गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए ये जजमेंट में डायरेक्ट इस पॉइंट को डिस्कस किया गया, इसीलिए ये जजमेंट आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। हो गया है। अब आइए सेक्शन 14। अब सेक्शन 14, इसी पर सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 क्या कहता है? हमारी इसका कर लिया लेकर अपना कौन सा चीज में है आज और सब चीज में है। सेक्शन 14 सर अगर प्लेंट में अमेंडमेंट करके उसको करे कंप्रोमाइज वाला म्यूचुअल कंसेंट वाला तो हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि वो सब कंडीशन है कि एक साल सेपरेट रहा कि नहीं रहा, उसमें क्या रहा, उसमें तो अलग ग्राउंड्स है। आपका समझिए दो कंपार्टमेंट है, वो एक अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, इसका एंट्री उसमें नहीं, उसका एंट्री इसमें नहीं। अमेंडमेंट यदि इंजेक्ट करे फैक्ट तो उसकी बात हम सब जानना चाहते हैं। अमेंडमेंट करेगा तो उसका नेचर ऑफ प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट परमिसिबल। उसी केस को कन्वर्ट करके करेगा तो नहीं होगा? नहीं, नॉट परमिसिबल। क्या क्या अंतर पड़ेगा दोनों में सर? देखिए, इसमें जो कंडीशंस है सेक्शन 13 में 4-5 कंडीशंस बताए न, वो सारा 4-5 कंडीशंस पहले ही फुलफिल होना चाहिए पिटीशन एडमिट होने के समय ही। कंडीशन, हाँ, वो कंडीशंस अगर अवेलेबल है तब होगा। नहीं हो रहा भाई, मतलब फैक्ट अलग हो जाता है। बालभूषण जी, उसको कहीं जनरेटर चला देगा। अब एक क्वेश्चन मुंगेर से पूछे थे, जो स्टेप बदर वाले, कौन पूछे थे? मुंगेर से। हाँ, मुंगेर से पूछे थे ना।
मुकेश जी को हम पूछे थे हाँ, अब देखिए उसमें क्योंकि क्लास क्लोज कर रहे थे, उसमें यस और नो दोनों आंसर है, इसलिए आपको एक जजमेंट बता देते हैं, वो डायरेक्टली और सबके लिए काम देगा। और वो जजमेंट बताने के पहले कुछ प्रोविजन बता देते हैं, तो आप डिसाइड कीजिएगा। तो कहाँ लिखो है? पहली बात जो हम बताए थे, मदर का डिफिनेशन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू लॉ में और जनरल क्लॉजेज एक्ट, दो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897 और दूसरा है बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉजेज एक्ट। एक सेंट्रल एक्ट है, एक स्टेट एक्ट है। बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1917, पहला है 1897, उसमें 1897 वाला सेक्शन 3 का 20, सेक्शन 3 का 20 में फादर को डिफाइन किया है, लेकिन मदर को नहीं है। और उसी तरह से 1917 वाला जो एक्ट है बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसमें सेक्शन 4 ब्रैकेट में 19 में फादर को डिफाइन किया गया है, मदर को नहीं। दोनों एक्ट में मदर का नहीं है। स्टेप मदर किसी में नहीं आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और न तो 125 CRPC में वन नहीं है स्टेप मदर। और ये अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ है केस, तो मजिस्ट्रेट जो है सीधे रिजेक्ट कर देगा। 125 के डिफिनेशन में स्टेप मदर का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट में आपको बताया, जैसा कि ड्यूअल जुरिडिक्शन है आपका, तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर उसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अगर उस एक्सप्लेनेशन के कैटेगरी में आएगा तब हो जाएगा स्टेप मदर को भी इंटाइटल। तो वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए फैक्ट्स अगर उस तरह का है तो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसके लिए एक जजमेंट आप नोट कर लीजिए, ये सोलिटरी जजमेंट है। इस पॉइंट पर एक ही जजमेंट है जिसमें दोनों एस्पेक्ट और सब प्रोविजन कंसीडर किया गया है। आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। जहां तक सवाल है फैक्ट्स का, वो आपको डिसाइड करना है, वो फैक्ट के आधार पर ही जजमेंट को अप्लाई करना है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों इसमें जवाब है। वो फैक्ट्स के डिपेंड करता है। अगर उसका कंडीशन है कि अगर उसको अपना बच्चा है, जो औरत मेंटेनेंस क्लेम कर रही है स्टेप सन से, उसको अपना लड़का है और वो लड़का जो है वो एबल टू मेंटेन है, और अगर उसका हस्बैंड भी है और वो एबल टू मेंटेन है, तब नहीं होगा। और अगर उसका हस्बैंड या उसका अपना लड़का अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स और स्टेप सन है जो एबल है, तब होगा। तो वो प्लीडिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको याद पड़ गया, इसलिए तुरंत हम सोचे कि आपको लिखा देते हैं, फिर भूल जाएंगे। पार्टी का नाम है कृतिकांत डी बदोदरिया, VADODARIA, कृतिकांत डी भदोदरिया, स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1996, वॉल्यूम 4 SCC 479। फिर से निकालिएगा सर। 1996 वॉल्यूम 4 SCC 479। आपका आंसर इसी में है, और बाकी आगे के लिए भी गाइडलाइन इसमें है। फैक्ट जैसा रहेगा वैसा आप डिसीजन कर दीजिएगा। अब आइए सेक्शन 14 म्यूचुअल कंसेंट में हम लोग आ रहे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के लिए इसको बोलते हैं नन ऑब्स्टेंटी क्लाउज, माने ये निगेटिव से सेक्शन शुरू हो रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट मीन्स इस एक्ट में कुछ भी हो,
it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage. Shall है word mandatory. It shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a degree of divorce unless at the date of presentation of petition 1 year has elapsed. ऊपर में जो 1 year आया, since the date of the marriage. एक दिन भी अगर हुआ तो नहीं हो. अब उसका प्रोविजो आई है. वो प्रोविजो इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ. तो पहले आपका रूल्स नहीं था, अभी रूल आ गया, 2011 का रूल आ गया. उस रूल 11 में आपको कंसेंट डिग्री के बारे में कुछ नहीं. ये धीरे धीरे जब समझ में आएगा, बहुत सा ऐसा मैटर है जिस पर रूल साइलेंट है या रूल है ही नहीं. जैसे आप इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रोवेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हाई कोर्ट अपना रूल बनाए हुए, उसमें बहुत डिटेल्ड है, उसी के आधार पर हम लोग करते हैं. लेकिन सिविल कोर्ट का कोई रूल्स नहीं है, इसलिए अलग अलग ढंग से कहीं सूट रजिस्टर होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहीं ट्रांसफर हो रहा है, कहीं यहाँ चला जा रहा है, कहीं वहाँ फाइल हो रहा है, बहुत सी गड़बड़ी हो रही है, रूल्स नहीं है. यहाँ पर कहता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ. अगर रूल्स है तो वो फॉलो होगा. अलाउ ए पिटीशन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 year हैज elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. अब इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. ये कोर्ट के विजडम पर है, कोर्ट के विजन पर है, उसके जुडिशियल प्रोप्राइटी एंड एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आप कितना अपना जुडिशियल डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते हैं. 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्शनल हार्डशिप, कॉमन हार्डशिप नहीं, ऐसा हार्डशिप है जो एक्सेप्शनल क्वालिटी का है, जिससे कि उसको हार्म होगा. या दूसरा है एक्सेप्शनल डिप्राइविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट को कोई डिप्राइविटी हो जाएगा, वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरी का, तब 1 साल के अंदर डिले को कंडोन करके लेस किया जा सकता. But if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a degree, do so subject to the condition that the degree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of marriage, or may dismiss the petition without prejudice to any petition which may be brought after expiration of the said 1 year upon the same or substantially the same facts as those alleged in support of the petition so dismissed. देखिए, अब वो पहला क्वेश्चन जो किए थे कि हम अमेंड करके कर नहीं सकते, उसका भी आंसर इसी सेक्शन 14 के प्रोविजो में छिपा हुआ है. परमिशन तो दिया गया एक्सेप्शनल केसेज में कि आप उसके पहले कंडोन कर सकते हैं, 1 year का पीरियड को कंडोन करके पहले पिटीशन इंटरटेन कर सकते हैं. लेकिन फिर इम्बार्गो लगा दिया गया कि अगर आपको देखना है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो इसमें नहीं हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट तो नहीं हुआ है, तो आप या तो पिटीशन सीधे डिसमिस कर दीजिएगा. मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बोथ अमाउंट्स टू फ्रॉड. और फ्रॉड का स्पेशल लॉ है. एनी ऑर्डर, एनी जजमेंट, एनी डिग्री obtained by practicing fraud, which includes everything: misrepresentation, concealment of material facts, concealment of material documents, all are within the ambit of fraud. If any party practices fraud upon court and obtains any judgment, order or degree at any stage, either from the trial court stage up to the apex court stage, that is null and void, and that can be recalled by the same court under its inherent jurisdiction, and that will not have any impact
it is illegal, void and without jurisdiction, and therefore it has got no legal sanctity. अब इसके आगे फिर प्रोविजो दिया गया है, वो प्रोविजो के नीचे दिया गया है, देखिए सब क्लॉज 2 देखिए, in disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of 1 year, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट जो आया है ये 76 के अमेंडमेंट से ही सब ऐड हुआ है, पीरियड वाला, एक्सेप्शन वाला, upon the same or substantially the same facts as in disposing of any application under this section for leave to present a petition for divorce before the expiration of 1 year from the date of the marriage, the court shall have regard to the interest of any children of the marriage and to the question whether there is reasonable probability of a reconciliation between the parties before the expiration of the said 1 year. यहाँ भी रिकंसिलिएशन के लिए कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ये कंसेंट के, तो यहाँ पर है कंसेंट हो सकता है, कंसेंट के आधार पर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकता है, कंसेंट वैलिड एंड लॉफुल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ब्रॉड, और पीरियड को भी कंडोन किया जा सकता है, तो एक्सेप्शनल हार्डशिप अगर होता है, वैसा इमरजेंट सिचुएशन आता है या डिप्राइविटी होता है रिस्पोंडेंट का वैसे कंडीशंस में, और चिल्ड्रन के फ्यूचर को देखते हुए भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन ज़्यादातर आता है जो मेरा एक्सपीरियंस है देखने के लिए, कि अगर किसी को फॉरेन कंट्रीज में है, वीसा उसका एक्सपायर कर रहा है, या किसी को ग्रीन कार्ड लेना है और उसका मैरिज के डिस्प्यूट के कारण उसको कुछ प्रॉब्लम वहाँ हो रहा है, और वो दोनों पार्टी तय कर लिया है कि हमको विथ कंसेंट डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज करा करके फिर जाना है, या दे हैव डिसाइडेड टू री मैरी विथ अनदर पार्टनर, बहुत सा केसेस है, बहुत सा कंडीशंस है, ये सब सिचुएशन को देखते हुए ये कंडोनेशन वाला प्रोविजन इसमें लगाया गया है। जैसे इसीलिए ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, 76 में आया, इस बीच में बहुत सारे केस लॉज क्रॉप अप कर गए, उसके बाद ये हुआ। अब इसके बाद आगे देखिए, लेकिन बिहार रूल जो बना है सर, उसमें तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू रूल, तो बिहार रूल में डिले कंडोनेशन का कोई प्रोविजन नहीं है? नहीं है रूल, ये सेक्शन 14 पर नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। रूल में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सिविल कोड रूल्स का सेक्शन 221 से लेकर के 214 उसको अप्लाई करेगा। इस सब के बारे में डिटेल में आपका रूल्स 2011 में जो रूल्स बना है उसमें नहीं है। तो फिर कैसे हम लोग उसको डिले कंडोन करेंगे? अगर इस 14 में मान लिया कोई कंसेंट वाला छोड़ दिया जाए, उसमें तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसमें अगर कोई करता है तो नहीं कर सकते। इसी सेक्शन 14 में कंडोन होगा, सेक्शन 14 सब्जेक्ट टू रूल का रहा, लेकिन रूल में नहीं है। 2011 वाले रूल में सेक्शन 14 पर कोई रूल नहीं दिया हुआ, उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हाई कोर्ट रूल्स में हाई कोर्ट रूल्स रूल 10 जो है वो नोटिस होगा इशू करने की बात करता है। नहीं, हम लोग को इसको बिहार सरकार ने रूल बनाया, उस रूल में नहीं है सेक्शन, उसमें नहीं है। बिहार सरकार ने रूल नहीं बनाया, बिहार सरकार ने नोटिफाई किया, ये रूल बनता है, हाईकोर्ट बनाता है। हाँ, तो बिहार सरकार ने फाइल किया ना सर, तो उसमें है नहीं। हाँ, वो नहीं है, तो स्टैट्यूट आपको कंडोनेशन का पावर ये स्टैट्यूट ही दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर इसके बारे में और कोई रूल है, इसके बारे में कोई रूल नहीं है, समझिए ठीक से इसको। ये हाई कोर्ट रूल्स का रूल 10 है। अरे हाई कोर्ट रूल अप्लाई नहीं करेगा इसमें, हम लोग क्या नहीं आएगा, सिविल कोर्ट रूल्स में कहाँ हुआ? हमसे नहीं आएगा, पटना हाई कोर्ट में नहीं अप्लाई करेगा इसमें, इसलिए तो कहा। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रोवाइडेड, जहां से फिर से पढ़ते, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, ये कोर्ट को इसी सेक्शन 14 में पावर दे रहा है, मे अपॉन एप्लीकेशन मे ट्वीट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ। वो मे, हाँ, मे मतलब है कि अगर रूल है तो रूल को फॉलो कीजिएगा, अगर रूल नहीं है तो इसी को फॉलो करके आपका डिस्क्रिप्शन है। अलाउ ए पिटीशन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 ईयर हैज इलैप्स्ड। चूंकि अब तक के तो, चूंकि रूल में अगर फॉरबिडन रहता तो हम नहीं कर सकते थे, या स्पेसिफिक प्रोविजन रहता तो उसको फॉलो करना पड़ता। जब कोई प्रोविजन, एक और छोटा सा सर, मान लिया शुरू में नहीं दिया,
और बीच में अगर वो करता है जो एडमिट हो चुका किसी कारण से गलती से जैसे भी कहा जाए सुनवाई पे चल रहा है और उस समय अगर बीच में आगे पिटीशन देता है जब पॉइंट आउट करने पर कि साहब आपका तो ऐसा है नहीं, तब क्या किया जाए? 1 साल के अंदर ही दाखिल कर दिया और शुरू में पिक्चर नहीं दिया, हाँ तो बाद में सुनवाई पे चल गया, हाँ तो बाद में आप इंटरटेन कर सकते हैं, लीव दे सकते हैं बाद में। लीव का जहां जहां प्रावधान है वो लीव कैन बी ग्रांटेड अटेनियम। अब अगर उसका कोई कंटेस्टेड मैटर में मटेरियल एडवांटेज हो जाए, क्योंकि और अदर कंसिडरेशन है, उसका जो है हार्डशिप का कंसिडरेशन है, डिप्राइवेशन का कंडीशन है, 2 कंडीशंस अगर है तो लेटर स्टेज में भी पिटीशन दिया है। हम कंडोन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि देरी को माफ करने का वो कंडोनेशन जो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट है वो यहाँ नहीं है, ये खुद स्टैट्यूटरी कोर्ट को इम्प्लिसिट जुडिक्शन है, जिसको इम्प्लाइड जुडिक्शन कहते हैं। सेक्शन 14 ही जुडिक्शन वेस्ट करता है टू कंडोन इट। ऐसा भी जजमेंट मिलेगा कि पहले का जजमेंट है कि कम से कम 6 महीना होना चाहिए, जी जी, ये भी मिलेगा आपको। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कर दिया कि अगर सप्रेस करके लेता है तो उस आधार पर नहीं होगा, हाँ ये भी कर दिया। तो इसी में आगे बना दिया गया ना अमेंडमेंट से, डिग्री हो जाएगा लेकिन इफेक्टिव 1 साल के बाद होगा। सपोज कर लिए कि आज पिटीशन फाइल कर दिए 2 महीना के अंदर है, और 2 सिचुएशन है, कंसील कर लिया कोर्ट भी नहीं देखा, 2 महीना में डिग्री हो गया तो वो इफेक्टिव होगा 1 साल के बाद। और अगर मान लिया कि लीव ले लिया, 6 महीना के अंदर लीव ले लिया, फाइल कर दिया, अगर वो लीव कंसीलमेंट से होता है तो या तो पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगा या डिग्री होगा तो वो 1 महीना के बाद अप्लीकेबल, वहां भी कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। जी जी, अब क्लियर हो गया? अब कोई और डाउट है इसमें? नहीं, इसमें तो नहीं। ठीक है, तब आप समझते हैं कि ये भी आपका चैप्टर क्लोज हो गया आपका। एक जो शुरू में पर्सनल लॉ के बारे में बताया जा रहा था सर, हाँ, तो जैसे एक मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट तो महिलाओं को देता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1939 का एक्ट है, लेकिन मेल्स के लिए तो कोई प्रावधान नहीं है। तो मेल्स के द्वारा अगर डाइवोर्स पिटीशन मेरे कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में मतलब मेरा करना है आता है तो कैसे मेंटेनेबल कैसे होगा, किस आधार पर? तो उसमें ओल्ड माने उसका जो ओरिजिनल लॉ है, कुरानिक लॉ, मोहम्मदन लॉ, उसमें प्रावधान है ही है डाइवोर्स का। तो हमारे कोर्ट में किस, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हुआ हिंदू के लिए, डाइवोर्स एक्ट हुआ क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम महिला के लिए अलग से मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट बना दिया 1939 में, तो उसके तहत हमारा इसीलिए ने शरीयत एक्ट बताया। शरीयत एक्ट 1937 अप्लाई करता है ऑल दी प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ, तो मुस्लिम लॉ में फिर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज का प्रावधान है। लेकिन सर इस पर जरा सा हम सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ये ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया। कौन सा जजमेंट? डिवीजन बेंच का जजमेंट है सर। हाँ बताइए। इसमें हुआ कि नहीं मेंटेनेबल ही नहीं। हाँ बोलिए ना, कौन सा जजमेंट है? ये जजमेंट है सर झारखंड हाई कोर्ट का है, हमारे पास नेट पर उपलब्ध है। हाँ बोलिए। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस नसरीन बेगम। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस नसरीन बेगम, 18 जून 2018 का जजमेंट है। डिवीजन बेंच ऑनरेबल जस्टिस परेश कुमार सिंह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रत्नाकर भेंगरा। अच्छा, इसमें फैक्ट्स क्या था? इसमें फैमिली कोर्ट ने ये कर दिया था कि साहब नहीं है हमारे यहाँ फैक्ट्स क्या था? फैक्ट्स में वो कोर्ट के इंटरवेंशन से डाइवोर्स ले रहा था कि डाइवोर्स एज पर मुस्लिम लॉ पहले दे चुका था, उसको रिकॉग्निशन के लिए आया था, ये डिस्टिंक्शन है उसमें। कोर्ट में ही ले रहा था, तो कोर्ट में लेने का तो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है नहीं। जब कोई आदमी कोर्ट में आवेगा तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन से उसको होना। देखिए हम पढ़िएगा जजमेंट, हम बता देते हैं। हम जो बता, फैमिली कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, हाँ, और उसने डिटेल में डील किया, उसी का अपील था। यहाँ हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं कोई प्रावधान ही। हेलो, खत्म हो गया। Recording in progress. वो जुडिक्शन के आधार पर कहा कि हमारा जुडिक्शन ही नहीं बनता कि सर कोई है नहीं, वो तो ठीक है। देखिए वो उसका क्या डिस्टिंक्शन है जो बता देते हैं। आप ऐसे समझिए
काउज ऑफ एक्शन और लोकस स्टैंडी, ये दो वर्ड तो समझते हैं आप लोग, सीनियर ऑफिसर है। अगर कोई काउज ऑफ एक्शन होता है किसी को, तब कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करता है। और काउज ऑफ एक्शन क्या है? बंडल ऑफ फैक्ट्स coupled with the provisions of law which entitle that person to get certain relief from that court to whom the person concerned approaches। तो अगर एक मोहम्मडन मेल या फीमेल फैमिली कोर्ट में अप्रोच करता है बाई फाइलिंग ए पिटीशन फॉर डाइवोर्स, तब किस एक्ट में करेगा, कौन सेक्शन में करेगा, ये बताइए। देयर इज नो, यहाँ ही कह रहा है कि इसमें जो भी अपीलेंट की तरफ से कहा गया कि हमको जो मुल्ला साहब का आर्टिकल 316, 17, 18 सब का जिक्र किया, 308 से लेकर 16 तक, यही तो बता रहे। कोर्ट ने कहा, आप सुनिए ना, जजमेंट क्या है वो देखिए, आप थोड़ा देर सुनिए ना, आपका हम समझ गए, आपको उसी समझा रहे हैं। दैट विल नॉट बी ए कंफ्यूजिंग जजमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आपको क्लियर हम बता रहे हैं, क्लियर। वो जो वकील साहब होंगे वो उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। द जजमेंट इज करेक्ट, द जजमेंट इज करेक्ट एंड इट हैज टू बी अडॉप्टेड इन टोटो। अब क्यों करेक्ट है और उसका रिवर्स सिचुएशन क्या है, ये आपको हम समझा रहे हैं। ये अप्रोच करेगा, जैसे आपके यहाँ पिटीशन फाइल करता है जनरली 13 हिंदू मैरिज एक्ट में या 13B में फाइल होगा, ठीक है। उसी तरह से अदर पार्टीज का अलग अलग प्रावधान है स्टैट्यूट में जिसमें फाइल करेगा। और हिंदू जो हिंदू लॉ से गवर्न है वो सब, बुद्ध, सिख, जैन सब इसमें गवर्न है, सब आ जाएगा। तो अगर मुस्लिम है तो कौन सा स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, आप खुद बता रहे हैं, वो फीमेल के लिए है डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो उसमें वो हस्बैंड नहीं आ सकता है, वाइफ आ सकती है। लेकिन अगर हस्बैंड आता है तो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसमें कि फैमिली कोर्ट के जुडिक्शन को इन्वोक करे। और मोहम्मदन लॉ इज ए कुरानिक लॉ, इट इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर फाइलिंग एनी पिटीशन। इवन आप ओल्ड हिंदू लॉ में अगर कोई हिंदू लॉ का ऐसा आर्टिकल मुल्ला कहा है जिसमें कि हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में कोई पिटीशन या सूट फाइल कर सकते हैं, बताइए। नहीं है। हम पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, हिंदू लॉ में टाइटल है पार्टीशन के, तो हम सेक्शन 9 CPC में फाइल करते हैं। तो उसी तरह से मोहम्मदन लॉ में प्रावधान है डाइवोर्स का। तो डाइवोर्स का जो उसमें प्रावधान है पर्सनल लॉ में, जैसे उसमें तलाक़े बिद्दत है, तलाक़े इद्दत है, कई तरह का तलाक़े बैन है, वो सब तलाक वो पहले दे देगा और उसके डिक्लेरेशन एंड कन्फर्मेशन के लिए आएगा तो आपको जुडिक्शन हो जाता है। हाँ, तब तो डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हाँ, तब यही पेज है। तो जो वकील लोग जानते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और जो पहले इसका हमको याद है 2 साल या 2.5 साल हो गया फिजिकल क्लास में, 2 दिन हम स्पेशली फैमिली जजेस का क्लास लिए थे। उसमें ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन था, इधर का बहुत आता है, शायद मोतिहारी या दरभंगा साइड का था, वहाँ का फैमिली कोर्ट का मैटर था। वहाँ पर मोहम्मदन लोग का बहुत केसेज ऐसा है कि हम तलाक दे दिए हैं और हमको कंफर्म कर दिया जाए या डिक्लेयर कर दिया जाए। तो प्रिंसिपल जज को ये डाउट हुआ कि जब वो पहले हो ही गया तो मेरे यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, हम उसको इंटरटेन करें कि नहीं करें। और आज आपका जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, इसलिए दोनों सिचुएशन को बना दिए। ये तो आप अप्रिशिएट कर लिए कि ये सिचुएशन अगर रहेगा तो फैमिली कोर्ट को जुडिक्शन हो जाता है, वो डिक्लेयर कर सकता है। यहाँ स्टेटस डिक्लेयर करने का तो आपका पूरा प्रावधान है, आपका पूरा जुडिक्शन तो बहुत वाइड जुडिक्शन है। मैरिटल है, लेकिन हम डिग्री इसका कि हम डाइवोर्स जैसे हिंदू में करते हैं, हाँ, उस तरह का डाइवोर्स तो नहीं कर सकते। नहीं वो दैट जजमेंट इज आंसर है, दैट इज ए करेक्ट जजमेंट। जी, करेक्ट जजमेंट, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, आई एग्री विद दैट जजमेंट, दो आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट जजमेंट। इसलिए झारखंड वाले जजमेंट में तब यह भी होल्ड किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, हाँ, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द डाइवोर्स एट प्रेजेंट मुस्लिम पर्सन में। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो सब ठीक ही है उसमें। आप डिस्टिंक्शन जो हम कर दिए समझ गए कि नहीं? I have viewed over several articles, sir, on net. In that also discussed that at present situation there is no
law for divorce of the Muslim person, there is needed a law for that person filing the divorce petition in the court. डाइवोर्स पिटिशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है, बट डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस एज ए डाइवोर्सी हो सकता है। दोनों में फर्क समझ लीजिए। तो आपको पार्टी 3 divorce 3 तलाक, 3 तलाक तो प्रोहिबिटेड हो गया। जो हम declare- 3 तलाक के अलावा डिक्लेरेशन दे देते हैं। और भी तलाक का प्रावधान है न, और भी तलाक का प्रावधान है। तो जो वैलिड है 3 तलाक तो अब इनवैलिड हो गया, वो पनिशेबल हो गया। तो 3 तलाक रहेगा तो कोर्ट उसको एक चीज बताया जाए, एक चीज बताया जाए, 13B2 में देखिए, एक मिनट रुकिए, अब इसको कम करने देखिए। तलाक जो हस्बैंड देता है, नोट कीजिए आप लोग, थोड़ा मोहम्मदन में डिफिकल्टी होती है तो अभी लिखाते हैं। जी सर। मुस्लिम मैरिज एक्ट में डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स जो आपको मोहम्मदन लॉ में लिखा हुआ है वो सब है। और दूसरा हुआ जुडिशियल डाइवोर्स। अब आइए, एक्स्ट्रा डाइवोर्स का 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी कह सकते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स का जो इस्लाम में है, मतलब मोहम्मदन लॉ मुल्ला में देखिएगा, उसमें है पहला है बाई हस्बैंड। हस्बैंड जो देगा उसको कहते हैं तलाक। तलाक या इला बोलते हैं, इला या जिहार। तलाक, इला और जिहार, ये तीनों हस्बैंड अगर देता है तो कहलाता है। और वाइफ जब देती है तो वह है तलाके तफवीज। तलाके तफवीज, जब वाइफ तलाके तफवीज। और जब म्यूचुअल कंसेंट से होता है तो उसको बोलते हैं खुला या मुबारात। खुला या मुबारात। अब ये समझ गए। अब तलाक कई तरह का होता है। तलाके अहसन, पहला लिखिए, तलाके अहसन। ये तलाके अहसन जो होता है वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट में होता है और इररिवोकेबल है। इद्दत के पीरियड के बाद इररिवोकेबल है। इद्दत के पीरियड के अंदर रिवोक हो सकता है, लेकिन इद्दत पीरियड खत्म हो गया तो इररिवोकेबल हो जाएगा। दूसरा होता है तलाके हसन। तलाके हसन, ये जब तलाक दिया जाता है ड्यूरिंग तुहर, जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ प्यूरिटी। उस पीरियड में कार्नल कनेक्शन नहीं होता है। तो 2 तुहर तो रिपीट करता है, तब वो कहलाता है तलाके हसन। और तीसरा होता है तलाक ए बिद्दत, जो 3 तलाक कहते हैं, ये बैन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सायरा बानू केस में भी ये तलाक का समझ गए, तो उस हिसाब से उसका तलाक होगा। फिर तलाक में थोड़ा सा सिया और सुन्नी में भी फर्क है। तो यहाँ पर तो आप लोग का सिया का केस आता नहीं है, इसलिए उसको जानने की जरूरत नहीं है। और जो भी है, जो जुडिशियल तलाक जिसको कहते हैं, वो अगर होगा तो उसके लिए काजी कोर्ट है।
जो डिजोसो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में है उसका सहारा ले करके लोग यहाँ पर भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि अब काजी कोर्ट तो एबॉलिश हो गया। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया, इसको समाप्त करें। अब नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक? एक चीज बताया जाए। हाँ बोलिए। सेक्शन 13B2 में 6 महीने का पीरियड मैंडेटरी है। 13B2 में 6 महीना कहाँ लिखा हुआ है? B2 में not earlier than 6 months after the date of presentation. On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of the presentation of petition referred to in section 1 and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall on being satisfied after hearing the parties. ये जो है ना 6 मंथ, हाँ मैंडेटरी है, नहीं मैंडेटरी, नहीं मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ये। इस पर एक रूलिंग आया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, बहुत ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट द्वारा जारी किया गया है। रूलिंग आया है, उसमें होल्ड किया हुआ है। Since we are of the view that the period mentioned in section 13B2 is not mandatory but directory, it will be open to the court to exercise its discretion in the fact and circumstances of each case. और रेफरेंस बताइए। रेफरेंस अमरदीप सिंह वर्सेस अरविंद कौर। प्रदीप सिंह, अमरदीप सिंह वर्सेस अरविंद कौर। अमरदीप सिंह वर्सेस अमरदीप सिंह वर्सेस अरविंद कौर। हरविंदर, हरविंद हरप्रीत, अरविंद कौर। हरविंद, हरविंद कौर। हाँ रिपोर्टेड किसमें है? रिपोर्टेड सिविल अपील नंबर है, सिविल अपील नंबर। अच्छा इधर का है सिविल अपील नंबर, सिविल अपील नंबर 11,158 2017 जी। रिपोर्टेड है क्या? जजमेंट रिपोर्टेड है? रिपोर्टेड है किसी हाँ कौन जनरल है? जनरल का बोलिए ना, ये तो दिक्कत है हमको। जनरल नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि डायरेक्टरी है, सुप्रीम कोर्ट का है, स्पेसिफिक कहा है डायरेक्टरी। लास्ट 21 पैराग्राफ है। Since we are of the view that the period mentioned in section 13B2 is not mandatory but directory, it will be open to the court to exercise its discretion in the fact and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation. ठीक है, तो उसमें डिसीजन देखिएगा, उसमें हाई कोर्ट का कुछ कंसीडर किया हुआ कि नहीं। पहले आ गया था कि मैंडेटरी है, ये डिसीजन हम नहीं पढ़े हैं, इसलिए अब जो आ गया था इसमें पूछने का सवाल ही कहा है। जब जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया है उसके अगेंस्ट में हम कैसे बता सकते हैं या कैसे जा सकते हैं हम लोग? वी आर ऑल बाउंड बाय द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन नो क्वेश्चन अराइजेस इफ यू हैव कोशिश अगर कर लिया गया हो तो द वेटिंग पीरियड विल ओनली प्रोलॉन्ग देयर एगोनी। ये भी लिखा हुआ है, द वेटिंग पीरियड विल ओनली प्रोलॉन्ग देयर एगोनी। वो देखिए, वो जो दिया गया है अभी भी देखिएगा कि वो जनरल लॉ, उसमें सभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें लॉ का ये नहीं हो सकता है प्रोनाउंसमेंट। किसी में लॉ फॉर्मुलेट होता है, किसी में वो पर्टिकुलर फैक्ट्स में दिया जाता है। इसलिए आप बहुत सारे जजमेंट में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में वेरिएंस आवेगा। अब उसका फैक्ट्स देखिएगा, अगर डिटेल में पढ़िए। ये डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कोर्ट को। हाँ। ये नहीं है कि हर में करिए देना है, जहाँ लगे वहाँ करना। इसीलिए वो डायरेक्टरी कर दिया। मैंडेटरी में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, और डायरेक्टरी डिस्क्रिशनरी कर दिया कि आप अगर लगता है तो कर सकते हैं। हाँ बस देखिए जो अब अगर इसका पढ़िएगा, एम एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस अमेंडमेंट और लॉ कमीशन का पढ़िएगा, उसके पहले का जो सब रिपोर्ट सब पढ़िएगा, तो उसमें लेजिस्लेचर का इंटेंशन था इसको मैंडेटरी बनाने का।
लेकिन बहुत सिचुएशन आ गया, 76 का अमेंडमेंट है, इतना साल गुजर गया, बहुत सारा केस आया, पहले सब कई हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया इसमें कि नहीं है मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। बहुत बार पर होता है, आपका सीपीसी में ऑर्डर 8 में आ गया मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, बाद में फिर हो गया कि डायरेक्टरी है। बहुत सा ऐसा प्रावधान होते रहता है, डे बाई डे आदमी वाइजर होते रहता है। इसलिए ठीक है, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव पॉइंटेड आउट दिस जजमेंट, आई हैव नॉट रेड, क्योंकि नेट पर निकाल के आई एम नॉट एकस्टम्ड ऑफ रीडिंग जजमेंट ऑन नेट। मोर ओवर हम जजमेंट वही पढ़ते हैं जब हम लोग को जरूरत होता है, और सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हैं, अदर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट हम पढ़ते नहीं है। जब केस लॉ में जरूरत होता है तभी पढ़ते हैं हम। आई ऑलवेज रीड बेयर एक्ट। जब बेयर एक्ट से कंसेप्शन हो गया तो फिर जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर कुछ डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियंस कोर्ट्स का होता है तो वहाँ पर देखना जरूरी है। और कुछ जजमेंट हमको इसलिए भी देखना पड़ता है कि एकेडमी में आप लोगों को बताने के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि जजमेंट बताइए। अगर जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस एंड विजडम, तो बहुत बार सवाल होता है कि आप इसका जजमेंट दीजिए, ये जो बता रहे हैं इस कौन जजमेंट है। तो कभी कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होता है कि जजमेंट का रेडी रोकना तो नहीं, हजारों जजमेंट है, 51 साल में कितना हजार केस किए, कितना जजमेंट पढ़े, और अभी तक सब माइंड में है। यही बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। एक नया ट्रेंड आजकल बन गया है कि बेसिक लॉ से ज्यादा जजमेंट खोजने लग रहे हैं लोग, तो कभी कभी उसमें कंफ्यूजन भी हो रहा है। और हम लोग को पढ़ाया गया, शुरू में ही पढ़ाया गया कि जो आप कभी भी, हमारे जो एक सीनियर थे सिविल के बहुत बड़े लॉयर थे गया में, वो कहते थे कि बड़ा जंगल में मत घुसिए। वो कमेंट्री बुक से जब पढ़ते देखते थे, कहते बड़ा जंगल में मत घुसिए, रास्ता भटक जाइएगा तो फिर निकलिएगा नहीं, उसी में घूमते रहेगा। इसलिए बेयर एक्ट पढ़िए, हमेशा कॉशन करते थे। और बेयर एक्ट को पढ़ने और समझने और उसको इंटरप्रेट करने का अगर तरीका मालूम हो गया तो वर्चुअली कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो जजमेंट क्या है उसी को क्लैरिफाई करता है हाई कोर्ट या इंटरप्रिटेशन। तो इसके बाद अब टॉपिक क्या बचा? हाँ, बेयर एक्ट पढ़ने से ज्यादा सुविधा रहता है। जी हम लोग वही पढ़ते हैं। हाँ, अच्छी बात है। अब जो है रंजीत बाबू, अब सब्जेक्ट आपका बच गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इसमें आपको क्या है, कोई सवाल है तो बोलिए। इसमें तो बहुत सिंपल है ये टॉपिक। तो चाय के बाद है ना सर? चाय पीजिएगा? अच्छा, ओ हमको तो याद ही नहीं रहता है। अच्छा, आप एक्सीड भी कर गए 20 मिनट, चाय पी लीजिए तब। चाय पी लीजिए आप लोग, ठीक है? जी सर, जी ठीक, ओके।